Okay. Today we are going to talk about one of the most important topics of fluid mechanics, which is the pressure measurements. And it is important that we understand this topic because consequent topics where we have to do multiple calculations in fluid mechanics are based on the pressure measurements. So it's an important one, and the book that we are following is the same book, and chapter 3, pressure measurements in Robert Mott. At the end of this chapter, a student should be able to understand the types of pressure and link them together, know how elevation is linked to pressure, derive the equation of elevation, understand the Pascal's paradox, have a concept of manometers and types of manometers. That is important. Even how to calculate from a manometer is important. Understand the barometer and pressure measuring devices. Be able to convert from one form of units to another form for calculation. Please, for this topic and the rest of topics, you need to know your unit conversions by the tip of your tongue or by the unitary method that I taught you. So please revise that method in your vacations if you do not know how to do it. Solve complex problems dealing with the elevation equations and manometer. Before I go on, इससे पहले मैं बात आगे करूं, हम प्रेशर के यूनिट्स की बात करते हैं। मैंने आपको कहा हुआ है कि हमारे पास दो सिस्टम होते हैं, एसआई यूनिट्स और यूएस कस्टमरी यूनिट्स। एसआई यूनिट के अंदर कोई मसला नहीं है। द यूनिट दैट वी आर गोइंग टू फॉलो इन द एसआई सिस्टम इज द किलो पास्कल। So whatever answer that you get, you write your answer in kilopascal. Pascal is also acceptable, but usually book kilopascal answer ले रही है क्योंकि आपका जो weight है ना वो किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब के हिसाब से आ रहा है, तो किलो पास्कल इसके यूनिट होंगे। और जो आपके यूनिट होंगे यूएस कस्टमरी सिस्टम में, दैट इज गोइंग टू बी पाउंड्स पर स्क्वायर इंच, जिसको हम बोलते हैं पीएसआई। PSI is the main unit used for pressure in the US system. The problem lies in PSI. PSI के अंदर प्रॉब्लम क्यों लाई करती है? That is pounds per square inch. मगर US सिस्टम के अंदर जो हम हाइट यूज करते हैं ना, तो वो लेते हैं फुट। हाइट अक्सर आप देखेंगे फुट में लेते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है कि आपको फुट पर इंचेस में आना पड़ेगा, क्योंकि आप पाउंड्स पर स्क्वायर इंच को फॉर्मूले प्रेशर नहीं यूज कर सकते और हाइट को फुट पे यूज नहीं कर सकते। तो कांस्टेंट कैलकुलेशंस के अंदर आप बार बार देखेंगे कि मैं डिवाइड भी कर रहा हूं बाय 144। 144 से डिवाइड करूंगा, कहीं पर मैं कोई डिवीजन करूंगा। ये 144 से क्यों डिवाइड कर रहा हूं? 144 से इसलिए डिवाइड करूंगा क्योंकि 1 फुट इज 12 इंचेस और पाउंड्स पर स्क्वायर इंच का मतलब होता है इंच स्क्वायर। 12 यानी 12 स्क्वायर 144 हो जाएगा। तो आपको आपके यूनिट कन्वर्जन्स लाजमी मालूम होने चाहिए, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर कंटिन्यूसली यूनिट कन्वर्जन आपके आएंगे। मैं आपको एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर होमवर्क भी दूंगा। वो होमवर्क आपको एक दिन में करने की जरूरत नहीं है, वो आपका पूरा असाइनमेंट है जब तक आपकी यूनिवर्सिटी खुलेगी। जो हमारी पहला दिन होगा ना यूनिवर्सिटी खुलने का, मैं आपको डेट दे दूंगा, उससे पहले यू हैव टू सबमिट दैट वर्क टू मी। आई एम अवेलेबल द इंटायर वेकेशंस। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो, यू कैन डिस्कस विथ मी, बट आई वुड रेकमेंड अगर मल्टीपल लोगों को प्रॉब्लम हो ना, जैसे अगर कोई एक न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम हो, मेक अ ग्रुप। लेट्स से यू आर अ ग्रुप ऑफ 10-15 स्टूडेंट्स हु डू नॉट नो अ प्रॉब्लम और हु वांट टू लर्न और समथिंग। Call me one day, anytime. Call me one day. It will be an unofficial class just to discuss the problem. बेशक 15 minutes की होगी, 30 minutes की होगी, we can discuss the problem so you can solve it over there. So that option is also available for you, that whoever wants to learn can contact me. Your CR can contact me, and we can arrange a extra class for 15-20 minutes based on problem. But please get your calculations right is my request. Going on to the main topic now.
When we talk about pressure, basically there are two types of pressure. One is the absolute pressure, one is the gauge pressure. अगर पहले मैं इनको डिफाइन करूंगा ना, गेज प्रेशर क्या होता है? गेज प्रेशर इज रिलेटिव टू द एटमॉस्फेयर. गेज प्रेशर की जब आप बात करते हैं, यू आर कीपिंग गेज प्रेशर रिलेटिव टू द एटमॉस्फेयर. अक्सर आपने सुना होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर. एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपका जनरल एयर प्रेशर होता है, या वो प्रेशर होता है जो बैरोमीटर से मेजर किया जाता है, द प्रेशर अराउंड यू. अब जो एब्सोल्यूट प्रेशर होता है ना, वो भी एक रेफरेंस पॉइंट का प्रेशर लिया जाता है. अब फर्क देखें इसके अंदर. फर्क यह है, whenever calculations are made involving pressures in a fluid, the measurements must be relative to some reference pressure made. ऐसा हो नहीं सकता कि आपने कोई रेफरेंस प्रेशर नहीं लिया हो जिसके जिसके ऊपर आपने कैलकुलेशन किया हो. नॉर्मली जो रेफरेंस प्रेशर होता है, दैट इज ऑफ द एटमॉस्फेयर, and the resulting increased pressure is the gauge pressure, which means that if I ask you the definition of gauge pressure, in simple words, gauge pressure is your pressure measured keeping in reference your atmosphere, the atmospheric pressure. The pressure measured relative to a perfect vacuum. फिर हमारे पास एक चीज होती है जिसको हम परफेक्ट वैक्यूम बोलते हैं. वैक्यूम परफेक्ट ये होती है जहां पर हम अज्यूम करें पार्टिकल्स डू नॉट एग्जिस्ट, nothing happens. Experimentally, this is not possible. Please keep in mind there is no such thing as perfect vacuum. It is not possible experimentally. But just for calculation, जी बोलें. आधा घंटा गुजर गया. अगर मुझसे सवाल नहीं है तो फिर वो क्या नाम है, माइक्स प्लीज ऑफ रखें. जो प्रेशर मुझसे कुछ पूछ रहे हैं जल्दी. यार, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही. चलें. द प्रेशर मेजर्ड रिलेटिव टू अ परफेक्ट वैक्यूम इज एब्सोल्यूट प्रेशर. यानी इनका फर्क क्या है? गेज प्रेशर इज द प्रेशर विच इज रेफरेंस टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. और जो आपका क्या नाम है, वो प्रेशर है, एब्सोल्यूट प्रेशर, दैट इज रिलेटिव टू परफेक्ट वैक्यूम. You should know this relation. This relation would not be given to you. Pressure absolute is equal to pressure atmosphere plus pressure gauge. This is a simple relation. If I ever ask you to calculate the absolute pressure, then to calculate absolute pressure, you need to know two things. You need to know the gauge pressure. You need to know the atmospheric pressure. A simple tip is that absolute pressure can never be less than zero. The lowest value of absolute pressure is going to be zero. इसको आप इस तरह सोचें. आपने कभी टेम्परेचर का सुना है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर, केल्विन स्केल इज एन एब्सोल्यूट टेम्परेचर. कभी आपने केल्विन सुना है कि -1 केल्विन, -2 केल्विन? एब्सोल्यूट टेम्परेचर कैन नेवर गो बिलो जीरो. इसी तरह एब्सोल्यूट प्रेशर कैन नॉट गो बिलो जीरो. यस, योर गेज प्रेशर कैन गो बिलो जीरो, माइनस के अंदर आ सकता है, और आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस के अंदर आ सकता है, मगर आपका एब्सोल्यूट प्रेशर कभी माइनस में नहीं आएगा. अच्छा, बिफोर आई गो ऑन, देयर इज वन थिंग ऑल्सो दैट आई फॉरगॉट टू टेल यू. जब हम प्रेशर की बात कर रहे हैं ना, तो प्रेशर के अंदर जब मैं अभी आपको एसआई यूनिट्स की बात कर रहा था, जो पीएसआई होगा ना, जो मैंने आपको कन्वर्जन फैक्टर भी दिया था, 14.7 psi इज इक्वल टू 1 एटमॉस्फेयर. ये रिलेशन मैंने आपको दी हुई थी बिकॉज आई न्यू यू आर डीलिंग विद प्रेशर कन्वर्जन्स. और अगर आप पास्कल में देखें प्रेशर को, तो इट इज 101,325 पास्कल, 1 atmosphere, which you can change into kilopascal. 101,325 divided by 1000, 1.01325, 1.01 into 10 to the power 3. चलें. अब now look at this. एक सेकंड, प्लीज गिव मी अ मिनट.
Okay, sorry about that. Now look at the relation between absolute pressure, the gauge pressure, and atmospheric pressure. Let us talk about the atmospheric pressure. Follow my mouse, please. This is the atmospheric pressure. You often know that the typical atmospheric pressure is 101 kilopascal. ये हमें मालूम है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर 101 किलोपास्कल होता है. बुक ने इसको राउंड ऑफ किया है 101 किलोपास्कल. द रियल वैल्यू ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 101,325 पास्कल. उसको आप 1000 से डिवाइड कर लेंगे तो किलो पास्कल में आ जाएगा. एट दिस वैल्यू ऑफ द एटमॉस्फेयर, जो ऐसा यूनिट्स के अंदर 101,325 है, आपका जो यूएस सिस्टम के अंदर है 14.7 psi होगा. लुक ओवर हियर, इट इज 14.7. अब इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर जो भी प्रेशर आएगा, फर्ज करें आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर 101,325 पास्कल है, आपका आंसर आ रहा है 106,458. That pressure is going to be the gauge pressure because it is relative to the atmospheric pressure, but that is going to be what? That is going to be positive gauge pressure. यानी वो जो आंसर आ रहा है वो पॉजिटिव गेज प्रेशर होगा जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर आ रहा है. इसी तरह जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के नीचे जो प्रेशर आ रहा है, दैट इज कॉल्ड द नेगेटिव गेज प्रेशर. सो इन शॉर्ट, pressure value can be both positive as well as negative. इसीलिए you have to be very careful in the pressure calculations. जहां पर आपने पॉजिटिव लेना है, अगर आपने वहां पर नेगेटिव ले लिया तो आपका पूरा आंसर गलत हो जाएगा. तो जिधर प्रेशर पॉजिटिव लिया जाता है वहां पर पॉजिटिव लेना है, जहां पर नेगेटिव होता है वहां पर नेगेटिव लेना है. मोस्ट इंपॉर्टेंट इन मैनोमीटर्स. ये भी मैं आपको सिखाऊंगा, इसकी ट्रिक भी आपको बताऊंगा. पॉजिटिव किस तरह लेना है, नेगेटिव किस तरह लेना है. अब ये देखें, ये जो आपकी चीज है वैक्यूम, एक वैक्यूम रेंज है. इस वैक्यूम रेंज के रिलेटिव ये आपका एब्सोल्यूट प्रेशर जा रहा है. दिस एब्सोल्यूट प्रेशर इज रिलेटिव टू योर वैक्यूम प्रेशर विच कम्स अंडर एटमॉस्फेरिक प्रेशर. यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के नीचे जो जो प्रेशर होता है दैट इज द वैक्यूम प्रेशर. So you can say, this is correct to say that negative gauge pressure is a part of vacuum pressure. क्योंकि negative gauge pressure जो है वो vacuum की range में आ रहा है. तो negative gauge pressure can be a part of vacuum range. So, but this is incorrect if you say that the absolute pressure is less than zero. That can never be less than zero. एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर वो प्रेशर होगा जहां पर आप बोलोगे कि आपका जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ना वो होगा -101 किलो पास्कल, और जो आपका पीएसआई का प्रेशर होगा वो -14.7 होगा. यानी मैक्सिमम जो आपका पीएसआई की रेंज हो सकती है ना वो -14.7 हो सकती है. मिनिमम आपकी पीएसआई वाली रेंज -14.7 हो सकती है. 14.7 से कम नहीं होगी. मैक्सिमम इट कैन गो 20 psi, 35 psi. बट नेगेटिव के अंदर अगर आपका आंसर, अगर आप कोई कैलकुलेशन कर रहे हैं और आपका आंसर -14.7 से कम आ रहा है, इसका मतलब आपने कुछ गड़बड़ की है, क्योंकि आप एब्सोल्यूट टेम्परेचर से नीचे चले गए हैं. दिस इज नॉट पॉसिबल. तो ये आपके लिए एक ट्रिक है, आपको मालूम होने करने के लिए कि मेरा आंसर सही है या गलत है. मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, आपका जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर है ना उसकी वैल्यू 0 psi होती है, 0 psi होती है या -14.7 psi होती है, यानी गेज प्रेशर. अगर आपका गेज प्रेशर -15 आ गया, दैट इज नॉट करेक्ट. It has to be -14.7 psig. psi और psig में फर्क है. psi या psi is what? It is absolute pressure. और जहां पर psig होगा that is gauge pressure. अगेन अगर कोई मुझसे ये पूछे कि गेज और एब्सोल्यूट प्रेशर में क्या फर्क है, तो सिंपली फर्क ये है, gauge pressure is the pressure with reference to the atmosphere.
यानी जहां पर आप PSIG लगा रहे हो वो आप वहां लगा रहे हो एटमॉस्फेयर के प्रेशर को देखकर, और जहां पर आप PSIA लिख रहे हो या एब्सोल्यूट प्रेशर लिख रहे हो वो आप लिख रहे हो विथ रिस्पेक्ट टू योर वैक्यूम. That is just the simplest of differences between the gauge pressure and the absolute pressure. अब देखें इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स लिंकिंग एटमॉस्फेरिक एंड गेज प्रेशर. यानी अगर आपको इन दोनों को लिंक करना है आपको क्या मालूम होना चाहिए. नंबर 1, a perfect vacuum is the lowest possible pressure. परफेक्ट वैक्यूम जो कि हकीकत में नहीं होता है बट हम अज्यूम कर रहे हैं, उधर आपका लोएस्ट पॉसिबल प्रेशर है. एब्सोल्यूट प्रेशर विल ऑलवेज बी पॉजिटिव. इसका मतलब ये हुआ कि एब्सोल्यूट प्रेशर नेगेटिव हो नहीं सकता. एब्सोल्यूट प्रेशर की लीस्ट वैल्यू 0 होगी, उसके अलावा कोई भी पॉजिटिव वैल्यू होगी एब्सोल्यूट प्रेशर की. A gauge pressure above the atmospheric pressure is positive. ये मैंने आपको बताया था अभी. Similarly, a gauge pressure below the atmospheric pressure is negative. Units of gauge pressure in SI are Pascal gauge and in the US system PSIG, जिसको हम पाउंड पर स्क्वायर इंच गेज बोलते हैं. एब्सोल्यूट प्रेशर इन SI पास्कल होता है या किलो पास्कल हो जाता है. यूएस सिस्टम के अंदर PSIA. सो PSIA इज नॉट द सेम एज PSIG. ये दोनों में फर्क है. वन इज द एब्सोल्यूट वैल्यू रेफरेंस टू द वैक्यूम, द अदर इज द गेज वैल्यू रेफरेंस टू द एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है ना, दैट मैग्नीट्यूड वेरीज विद लोकेशन एंड क्लाइमेटिक कंडीशन. आपका जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो हर जगह सेम नहीं होगा. कोई ठंडी जगह में कुछ और होगा, हाइट के ऊपर कुछ और होगा. इट डिपेंड्स वेयर यू आर लोकेटेड ऑन द अर्थ. Normally, the range of atmospheric pressure on the Earth's surface is approximately 95 to 105 kilopascal absolute pressure. ये उसका नॉर्मल प्रेशर होता है. मगर फर्ज करें अगर मैं आपको कोई भी क्वेश्चन दूं और उधर मैंने आपको कोई कंडीशन नहीं दी है कि अज्यूम योर एटमॉस्फेरिक प्रेशर टू बी दिस, योर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज गोइंग टू बी 101 किलो पास्कल और 101,325 पास्कल. यही वैल्यू लीजिएगा, इसके अलावा कोई वैल्यू नहीं लीजिएगा अनलेस मैं आपको बोलूं कि आप 105 किलो पास्कल लें. तो आपने अज्यूम करनी है कि आपके केस में आपकी वैल्यू होगी 101 किलो पास्कल या 101,325 पास्कल एटमॉस्फेरिक प्रेशर की, और इसकी कॉरिस्पॉन्डिंग प्रेशर की आपकी वैल्यू होगी 14.7 PSI. These are the two values you should know. बाकी अगर कोई कंडीशन चेंज हो जाए, 95 हो जाए, 105 हो जाए, 13.8 to 15.3 हो जाए, that value will be given to you, or you can calculate by unit conversion, but usually it is given. For your better understanding, I want you to do examples 3.1 to 3.4. ये worked examples हैं, इसको खोलकर देखिएगा. इसके अंदर कोई मसला नहीं है, हो जाएंगे. इसके अंदर करना क्या है, इन्होंने आपको वैल्यूज दी हुई हैं, आपने या तो एब्सोल्यूट निकालना है या गेज प्रेशर निकालना है. कौन सा फॉर्मूला यू आर गोइंग टू यूज? यू आर गोइंग टू यूज दिस फॉर्मूला. प्रेशर एब्सोल्यूट इज इक्वल टू प्रेशर एटमॉस्फेयर प्लस प्रेशर गेज. इट इज जस्ट एन अंडरस्टैंडिंग, so we do not need to go for it in class. If you have a problem you can still ask me. If units for two of the three variables are in SI or US, it is not a problem. अगर तीनों वैल्यू में से दो के यूनिट्स SI के अंदर हो जाएं, क्योंकि दो आपको मालूम होंगे तभी आप तीसरा ढूंढ सकते हैं. तो अगर दोनों के SI में है या US में है कोई मसला नहीं है. मगर अगर एक का SI के अंदर है और एक का US यूनिट के अंदर है तो फिर आपको यूनिट कन्वर्जन लगानी पड़ेगी. चलें, अब हम बात करते हैं प्रेशर रिलेटेड टू एलिवेशन हाइट. दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट. प्लीज स्टार्ट टू बी विथ मी नाउ. सबसे पहले तो ये याद रख लें, दिस इज द रूल ऑफ थंब. अगर आपको कुछ और याद ना रहे, कम से कम इतना याद रख लें कि प्रेशर, जो फ्लूइड का प्रेशर होगा ना, दैट इज गोइंग टू इंक्रीज विद डेप्थ. यानी जितना आप डेप्थ को इंक्रीज करोगे उतना आपका प्रेशर बढ़ता रहेगा.
So with depth a fluid pressure increases. It is important phenomena in industrial application. आपका जो इंडस्ट्री के एप्लीकेशंस हैं वहां पर आपको बहुत जरूरी रखता है ये दिमाग में रखना कि आपका प्रेशर इज गोइंग टू वेरी विथ योर डेप्थ. एम आई स्टिल ऑडिबल? क्योंकि बहुत देर से लोग चुप हैं. आवाज आ रही है? यस सर, आवाज आ रही है. यस सर. यस सर, आ रही. हेलो. यस सर, आवाज आ रही है. Okay, okay. The elevation refers to the vertical distance from a reference level to a point of interest and is denoted by Z. अब elevation क्या चीज होती है? Elevation आपका vertical distance होता है. याद रखिएगा कि कभी horizontal distance को elevation के अंदर नहीं लीजिएगा. Elevation firstly is your vertical distance, आपकी height, और आपके reference level से. अब जो reference level होता है ना, वो आपकी मर्जी का रेफरेंस लेवल होता है कि आप किस चीज को रेफरेंस ले रहे हो. अगर मैं कोई क्वेश्चन दूं, हो सकता है एक स्टूडेंट एक चीज को पॉइंट ए को रेफरेंस लेवल ले रहा है, दूसरा स्टूडेंट पॉइंट बी को रेफरेंस लेवल ले रहा है. दोनों ने सॉल्व किया, आंसर दोनों का सेम आएगा अगर उन्होंने करेक्ट किया हो. तो अगर कोई ए को ले रहा है और आप बी को ले रहे हो, और तो आप ये घबराइएगा नहीं कि मेरा आंसर गलत आएगा. It depends on your reference level कि what you are choosing. A change in elevation between 2 points is called h. जो आपकी h की हाइट होती है ना, वो बेसिकली आपके दो पॉइंट के बीच में चेंज होता है, यानी z1 और z2 का. इससे पहले मैं आगे चलूं, हम इसकी बात करते हैं. इसको जरा देख लें. फर्ज करें ये मेरे पास पिक्चर है. पहली पिक्चर में मैं सी बेड को रेफरेंस लेवल लेता हूं. दिस इज माई रेफरेंस लेवल. अगर मेरा ये रेफरेंस लेवल है तो जो ये सबमरीन है, आई विल अज्यूम दैट द Z और H ऑफ द सबमरीन इज 60 मीटर बिकॉज दिस इज माई रेफरेंस लेवल. आई एम कैलकुलेटिंग द प्रेशर दैट द सबमरीन exerts with respect to 60 meters. Similarly जो ये ऊपर जो वाटर सरफेस है, that is 150 meter. So I assume that the pressure on the water surface is relative to this reference line 150 meter है. So one student might do this to calculate the water pressure. It is correct. अगर मैं कोई चीज को आपको रेफरेंस नहीं बोलूं. दूसरा स्टूडेंट क्या करता है? दूसरा स्टूडेंट कहता है नहीं, मैं सबमरीन को रेफरेंस लेवल लेता हूं. तो he makes this as the reference level. Again he knows that the total height from here to here is 150. बट उसने अगर इसको रेफरेंस लेवल लिया है तो जो सबमरीन और सी बेड का डिस्टेंस है दैट इज -60. और जो क्योंकि ये रेफरेंस लेवल से नीचे जा रहा है, यहां पर रेफरेंस लेवल नीचे था इसीलिए दोनों वैल्यू पॉजिटिव थी. यहां पर आपकी एक वैल्यू नेगेटिव है क्योंकि ये आपके रेफरेंस लेवल से नीचे जा रही है -60. दूसरे आपके रेफरेंस लेवल से ऊपर जा रही है तो ये पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगी 90. मगर इन दोनों का डिफरेंस भी 150 ही होगा बिकॉज द डिफरेंस बिटवीन फाइनल माइनस इनिशियल 90 माइनस 60 जो होगा इनका एलिवेशन z. आमतौर पे h को h इज डिनोटेड बाय z1 माइनस z2. z1 माइनस z2 अगर आप करेंगे तो z1 आपका 90 है, z2 आपका -60 है. 90 माइनस 60 यानी फॉर्मूला में है z1 माइनस z2. तो z2 की वैल्यू वैसे ही नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा. टोटल आपका 150 ही बनेगा. तो अगर स्टूडेंट रोल नंबर 1 इसको रेफरेंस लेते हैं, रोल नंबर 2 इसको रेफरेंस लेते हैं, दोनों का आंसर सेम आएगा. दोनों का सेम आएगा प्रोवाइडेड आपने इसको सही तरीके से किया हो. तो ये बात आपको समझ आई कि रेफरेंस लेवल क्या होता है? यस सर. सही है. अब ये आपके ऊपर डिपेंडेंट है. अगर मैं आपको क्वेश्चन में कुछ नहीं बोलूं, आप रेफरेंस लेवल क्या लो. आमतौर पे स्मार्टेस्ट आइडिया रेफरेंस लेवल का होता है. स्मार्टेस्ट आइडिया मैं बताऊं, मगर हो सकता है कोई स्टूडेंट मुझसे अग्री नहीं करे. मैं रेफरेंस लेवल को उस पॉइंट को लूंगा जो बिल्कुल मेरे लिए जीरो बना देगी और मुझे कोई नेगेटिव वैल्यूज नहीं मिलेंगी, क्योंकि नेगेटिव वैल्यूज के अंदर चांसेस हैं कि मैं माइनस की साइन भूल जाऊं और मेरा एरर आ जाए.
मगर इसको अगर मैं रेफरेंस लेता हूं तो मैं श्योर हूं कि मेरे पास नेगेटिव वैल्यू नहीं है, दोनों वैल्यू पॉजिटिव हैं। अच्छा, दूसरी बात ये जो मैं डेप्थ की बात कह रहा था, यकीनन यहां पर जो प्रेशर होगा इस पॉइंट के ऊपर प्रेशर, दैट इज गोइंग टू बी मोर देन द प्रेशर एट दिस पॉइंट। बात वही हुई, एज द डेप्थ इंक्रीजेस द प्रेशर विल इंक्रीज, यानी आपके इस पॉइंट के ऊपर मैक्सिमम प्रेशर होगा, इस पॉइंट के ऊपर आपका मिनिमम प्रेशर होगा। और यह हकीकत बात है कि यहां पर आपका मिनिमम प्रेशर 0 पास्कल होगा विथ रेफरेंस टू द एटमॉस्फेयर, यहां पर 0 हो जाएगा, और यहां पर आपका मैक्सिमम प्रेशर होगा विद डेप्थ। तो दैट इज द रिलेशन बिटवीन डेप्थ एंड प्रेशर। अच्छा, अब वही बात हुई जो मैंने आपको अभी बताई, द रेफरेंस लेवल कैन बी टेकन एज एनी लेवल। एलिवेशन इज ऑलवेज मेजर्ड पॉजिटिवली इन द अपवर्ड डायरेक्शन। आपका एलिवेशन होगा ना, वो पॉजिटिवली अपवर्ड डायरेक्शन में मेजर होता है। Higher point has a larger elevation than the lower point. This means that this point has a higher elevation than this point. The change in pressure in the homogeneous liquid at rest due to change in elevation is given by this formula. ये जो फॉर्मूला है ये आपको याद होना चाहिए, डेल्टा P is equal to specific gravity multiply by height. अब इधर एक चीज आपको, चलें आपका थोड़ा सा टेस्ट करते हैं कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्या हैं। डेल्टा P की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? व्हाट कैन आई राइट इन प्लेस ऑफ डेल्टा P? P2 minus P1. P2 माइनस P1। यानी कहीं कभी कुछ क्वेश्चंस के अंदर आपको दो प्रेशर दिए जाते हैं और बोला जाता है P, ये वाला प्रेशर ढूंढो। उस केस के अंदर जहां पर आपको एक स्पेसिफिक प्रेशर ढूंढना होता है, वहां पर आप डेल्टा P की जगह P2 माइनस P1 लिखेंगे। तो डेल्टा P कैन ऑल्सो बी रिटन एज P2 माइनस P1। तो दिस फॉर्मूला इज नॉट pressure is directly proportional to specific weight into height, ये नहीं है। दिस फॉर्मूला इज चेंज इन प्रेशर। तो कभी भी अगर आपको एलिवेशन का फॉर्मूला लिखना हो, अगर आपने P इज इक्वल टू गैमा H लिखा, ये गलत हो जाएगा। आपने लिखना है डेल्टा P इज इक्वल टू गैमा H, क्योंकि यहां पर आप प्रेशर चेंज देख रहे हो। किस चीज का प्रेशर चेंज देख रहे हो? प्रेशर चेंज फ्रॉम वन डेप्थ टू अनदर। प्रेशर चेंज ही है ना, चेंज ऑफ प्रेशर विद डेप्थ। तो ये फॉर्मूला इसको याद रखिएगा। अच्छा, इस फॉर्मूला का एक और फॉर्म भी हो सकता है, वो क्या हो सकता है? प्रेशर की जगह mgh लिखें। जी, क्या हो सकता है? देखें, जो दिमाग में आ रहा है बोल दें, क्योंकि मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग देखना चाह रहा हूं। मैं कोई आपको टोकूंगा नहीं अगर आपने गलत किया है। जी, क्या हो सकता है? प्रेशर की जगह सर mgh वाला इक्वेशन लिख ले, मतलब लेफ्ट हाँ, साइड वाला। प्रेशर की H1 जगह minus नहीं, H2. प्रेशर की जगह नहीं, इसकी जगह स्पेसिफिक ग्रेविटी की जगह आप रो जी एच लिख सकते हो, यानी डेंसिटी लिख सकते हो। वो डेंसिटी कैसे आती है? वो चैप्टर 1 में आपको याद है, जब मैं स्पेसिफिक वेट की बात कर रहा था कि स्पेसिफिक वेट क्या होता है? स्पेसिफिक वेट इज W अपॉन V। W क्या होता है? mg। M अपॉन V क्या होता है? डेंसिटी आ गई। तो यानी इसकी जगह रो जी भी आ सकता है। अगर आपको इंफॉर्मेशन के अंदर डेंसिटी दी गई हो या मास दिया गया हो, तो डेल्टा P का दूसरा फॉर्मूला है डेल्टा P इज इक्वल टू रो जी एच। वो फॉर्मूला याद आया? लेक्चर 1 के अंदर है, तो उसका मैंने आपको डेरिवेशन भी करवाया था, तो प्लीज वो याद कर लीजिएगा। अभी मुझे एक आइडिया हो जाएगा कि लेक्चर 1 किस किस ने पढ़ा है और किसको याद है। ये गैमा की वैल्यू क्या होती है, जरा मुझे ये बताएं। मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि ये वैल्यूज आपको लाजमी बाय द टिप ऑफ योर हेड मालूम होनी चाहिए, ये गिवन नहीं होंगी। गैमा की वैल्यू क्या लेंगे अगर आप विथ रिस्पेक्ट टू वाटर लेंगे एसआई यूनिट में? मैं एक दफा रिपीट कर देता हूं, अगर आपका रेफरेंस लेवल वाटर है ना, तो गामा की वैल्यू ऑफ वाटर इज गोइंग टू बी एट 4 डिग्रीज, अगेन इज गोइंग टू बी
9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, ये एसआई यूनिट के अंदर। यूएस यूनिट के अंदर क्या होगी? 62.4 पाउंड फोर्स डिवाइडेड बाय फिट क्यूब। ये दो वैल्यूज मैंने लेक्चर 1 में दी थी। प्लीज लेक्चर इस वाले टॉपिक के लिए, प्रेशर वाले टॉपिक के लिए, लेक्चर 1 के अंदर जो वो वाला पोर्शन था ना, स्पेसिफिक ग्रेविटी, वेट, मास, डेंसिटी, वो वाला टॉपिक जरा रिवाइज कर लीजिएगा। दैट इज गोइंग टू बी नीडेड फॉर दिस टॉपिक। चलें, अब कंक्लूजन आपको क्या मिलते हैं प्रेशर वर्सेस एलिवेशन इक्वेशन के। सबसे पहला कंक्लूजन तो ये है कि इक्वेशन इज वैलिड ओनली फॉर अ होमोजीनियस लिक्विड एट रेस्ट। ये जो इक्वेशन है ना, डेल्टा पी इज इक्वल टू स्पेसिफिक वेट मल्टीप्लाई बाय हाइट, ये स्टैटिक बॉडी के लिए, स्टैटिक फ्लूइड के लिए, ये आपके मूविंग फ्लूइड के लिए नहीं हो सकता। तो अगर आपका फ्लूइड मूव कर रहा है तो कोई और इक्वेशन होगी जो हम बाद में पढ़ेंगे जब आप लोग आ जाएंगे। ये स्टैटिक फ्लूइड के लिए। दूसरी बात ये, पॉइंट्स ऑन द सेम हॉरिजॉन्टल लेवल हैव द सेम प्रेशर। अगर आपका पॉइंट सेम लेवल के ऊपर है तो उसका प्रेशर सेम होगा, दोनों का सेम होगा। ये हम एक न्यूमेरिकल करेंगे तो आप देखेंगे, पर ये याद रख लिएगा कि अगर स्ट्रेट लाइन के अंदर है उन दोनों का प्रेशर सेम है। तीसरी बात, चेंज इन प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्पेसिफिक वेट ऑफ द लिक्विड। अगर आपका स्पेसिफिक वेट ज्यादा हुआ तो आपका प्रेशर भी ज्यादा होगा। ये लिनियर रिलेशन है। चेंज इन प्रेशर, क्योंकि हाइट तो चेंज नहीं हो रही ना, अगर ये कांस्टेंट है ये कांस्टेंट है तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसकी वैल्यू से। अगर ये बढ़ेगा ये बढ़ेगा, ये कम होगा ये कम होगा। चेंज इन प्रेशर, again I am talking about change in pressure, which means that delta P is directly proportional to gamma. P2 P1 इसको नहीं बोल सकते it is directly proportional to gamma. Overall change in pressure is directly proportional to gamma. Number 4, pressure varies linearly with a change in elevation or depth. ये भी आप एक एग्जांपल में देखेंगे, बट इन सिंपल वर्ड्स मैं आपको सिर्फ ये बोल दूं कि अगर फर्ज करें, ये पॉइंट का मतलब क्या है? इस पॉइंट का मतलब ये है कि अगर आपकी डेप्थ 2 मीटर पे है, अज्यूम कर लें आपकी डेप्थ 2 मीटर के ऊपर है, आपका प्रेशर 60 किलो पास्कल है 2 मीटर डेप्थ के ऊपर। अगर मैं उस डेप्थ को ट्रिपल कर लूं, 6 मीटर कर लूं, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा अगर लिनियर रिलेशन है? 120। नहीं, 120 नहीं होगा, लिनियर रिलेशन है ना। अगर आपकी डेप्थ 3 दफा बढ़ रही है तो आपका प्रेशर भी 3 दफा बढ़ेगा। अगर आपकी डेप्थ 2 टाइम्स होती तब 120 होता। बात समझ आई? अगर 2 मीटर के ऊपर 60 है तो 4 मीटर के ऊपर 120 हो जाएगा, 6 मीटर के ऊपर 180 हो जाएगा। यस सर। तो ये बोलना चाह रहा है कि प्रेशर विल वेरीज लिनियरली विद चेंज इन एलिवेशन और डेप्थ। अच्छा, अ डिक्रीज इन एलिवेशन कॉजेज एन इंक्रीज इन प्रेशर। ये याद रख लीजिएगा, इसको रूल ऑफ थंब बना लें और अपनी किताब के अंदर कहीं लिख लें। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। अ डिक्रीज इन एलिवेशन will cause an increase in pressure and an increase in elevation will cause a decrease in pressure. सबसे कॉमन एग्जांपल आप सी बेड का देख लें। सी बेड बिल्कुल नीचे है, इसका एलिवेशन कम हो रहा है, प्रेशर मैक्सिमम यहां पर होगा। ये बिल्कुल टॉप पे है, एलिवेशन सबसे ज्यादा है, प्रेशर सबसे कम होगा। अगर मैं डेप्थ बढ़ा रहा हूं, एलिवेशन बढ़ा रहा हूं, यानी ये मेरा पॉइंट है, यहां से मैं यहां आया, दिस प्रेशर इज ग्रेटर देन दिस प्रेशर। यहां से यहां आया, दिस प्रेशर इज ग्रेटर देन प्रेशर ओवर हियर। सो प्रेशर इज वेरिइंग विद डेप्थ। जितना आप डिक्रीज करोगे डेप्थ के अंदर एलिवेशन में, उतना आप प्रेशर को इंक्रीज करोगे। ये सब आपको समझ आएगा जब हम न्यूमेरिकल करेंगे, जो हम अभी करने वाले हैं इस स्लाइड के बाद। The application of the equation does not work on gases. ये याद रख लें कि ये जो हमने पूरा इक्वेशन किया है ये सिर्फ इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए है, लिक्विड्स के लिए। कोई भी लिक्विड हो जाए, मरकरी हो जाए, वाटर हो जाए,
ऑयल हो जाए। तीनों लिक्विड के लिए ये एप्लीकेबल है, मगर गैसेस के लिए नहीं है, कंप्रेसिबल फ्लूइड्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है। आपको ये मालूम होना चाहिए द स्पेसिफिक वेट ऑफ द गैसेस विल चेंज विद अ चेंज इन प्रेशर, इसीलिए एप्लीकेबल नहीं है। अभी मैं आपको ये बोल रहा था कि यहां पर आपका जो स्पेसिफिक वेट है वो चेंज नहीं होता है। लिक्विड के अंदर अगर पानी का स्पेसिफिक वेट है एट अ सर्टेन टेम्परेचर, वो स्पेसिफिक वेट रहेगा, चाहे आप जितनी हाइट बढ़ा लो या जो कंडीशंस आप चेंज कर लो प्रेशर की। गैसेस के अंदर जैसे ही आप उसका प्रेशर चेंज करोगे, आपका स्पेसिफिक वेट चेंज हो जाएगा। इसलिए यू कैन नॉट अप्लाई दिस इक्वेशन ऑन गैसेस। अगर मैं आपसे रीजन पूछूं व्हाई इज इट नॉट एप्लीकेबल ऑन गैसेस। However, a large change in elevation is required to change the pressure of gases significantly. अगर आपको गैसेस का प्रेशर बहुत ज्यादा चेंज करना है तो आपको एक बहुत बड़ी हाइट देनी पड़ेगी उसको चेंज करने के लिए। कैलकुलेशन पर्पसेस के लिए हम assumption लेते हैं, hence for calculation pressure it is assumed that the pressure of gases is uniform unless specified. We are not going to focus on the pressure of gases. We assume that we can do them by a different method. अब आप वर्कड एग्जांपल्स देखें। ये कुछ वर्कड एग्जांपल हैं, पर मैंने इसको सॉल्व कर कर आपको दिखाने के लिए किया है। पहला क्वेश्चन क्या था? कैलकुलेट द चेंज इन वाटर प्रेशर फ्रॉम अ सरफेस टू अ डेप्थ ऑफ 5 मीटर। जस्ट प्लीज फॉलो मी कि मैं आपको क्या बोल रहा हूं। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं फॉर्मूला लिखूंगा डेल्टा पी इज इक्वल टू स्पेसिफिक ग्रेविटी मल्टीप्लाई बाय एच। स्पेसिफिक ग्रेविटी नहीं, स्पेसिफिक वेट। अब देखें, मैंने आपको ये कहा था कि मैं वाटर से डील कर रहा हूं क्योंकि यहां पर लिखा हुआ है वाटर। वाटर की वैसे स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है? वाटर की स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 होती है। असल में दिस फॉर्मूला इज 1 मल्टीप्लाई बाय द स्पेसिफिक वेट, मगर क्योंकि सॉरी स्पेसिफिक ग्रेविटी मल्टीप्लाई बाय स्पेसिफिक वेट, मगर क्योंकि स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 है, हम स्पेसिफिक ग्रेविटी को दिखाते नहीं है। अगर ऑयल होता तो हमें डेफिनेटली दिखाना पड़ता, इसका हम जिक्र करेंगे। तो मुझे ये मालूम है कि माय स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर इज 9.81। फॉलो माय यूनिट, किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ये मैंने आपको लेक्चर 1 में दिया था। द यूनिट वाज फोर्स अपॉन वॉल्यूम, W अपॉन V। W के यूनिट न्यूटन होते थे और उसके यूनिट मीटर क्यूब होते थे, और यहां पर इसने यूनिट किलो न्यूटन में दिए हुए हैं। तो किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब मल्टीप्लाई बाय 5 मीटर। 5 मीटर हाइट दी भी थी। तो अगर ये मीटर कैंसिल हुआ, ये मीटर कैंसिल हुआ, तो ये मीटर स्क्वायर बन गया। यानी मीटर स्क्वायर किस तरह बना ये मैं आपको दिखा रहा हूं। हाइट हाइट कैंसिल, एंड ऑब्वियसली किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज किलो पास्कल। दैट इज हाउ यू गॉट द यूनिट्स किलो पास्कल। ये यूनिट को लाजमी कटना जरूरी है। दैट इज अ चेंज इन वाटर प्रेशर। अब इसी से मिलता जुलता दूसरा एग्जाम्पल है। अब ये एग्जाम्पल देख लें क्योंकि ये बार बार यूज होंगे। कैलकुलेट द चेंज इन वाटर प्रेशर फ्रॉम द सरफेस टू अ डेप्थ ऑफ 15 फीट। 15 फीट आपको क्या बता रही है? 15 फीट आपको ये बता रही है कि इसका जो आंसर होगा वो यूएस सिस्टम के अंदर होगा, यानी इसका जो प्रेशर होगा वो पीएसआई के अंदर होगा। तो सबसे पहले आप वही बात करेंगे, डेल्टा पी इज इक्वल टू स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर मल्टीप्लाई बाय एच। स्पेसिफिक वेट आपको मालूम है, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला था कि ये वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर इन द अमेरिकन सिस्टम इज 62.4 पाउंड फोर्स पर फुट क्यूब। पाउंड फोर्स पर फुट क्यूब, ये याद रखिएगा, पाउंड फोर्स पर फुट क्यूब। इसको आपने 15 फीट हाइट से मल्टीप्लाई करना है। जब आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये फुट और ये फुट स्क्वायर कैंसिल हो गया। 62.4 मल्टीप्लाई बाय 15, ये 936 पाउंड फोर्स पर फुट स्क्वायर है। दैट इज नॉट द यूनिट ऑफ प्रेशर। द यूनिट ऑफ प्रेशर इज पाउंड फोर्स पर स्क्वायर इंच। तो फिर यहां पर आपको आपकी यूनिट कन्वर्जन करनी पड़ेगी। दैट 1 फुट इज इक्वल टू 12 इंचेस, 1 फुट स्क्वायर इज इक्वल टू 12 स्क्वायर। इसीलिए 936 डिवाइडेड बाय 144 आएगा, एंड योर आंसर इज गोइंग टू बी
6.5 psig। किसी को ये वाला न्यूमेरिकल समझ नहीं आया तो अभी बता दें, क्योंकि आपके होमवर्क में बहुत सारे ऐसे न्यूमेरिकल होंगे। कोई पॉइंट किसी को समझ नहीं आया, शर्माने की बात नहीं है, मेरा काम है आपको बताना। अगर कोई पॉइंट समझ नहीं आया तो पूछ लें अभी। सर ये इसके बाद बता दें, ये जो नीचे कैलकुलेशन हुई है ना कन्वर्जन वाली। मैं माउस चलाऊंगा उधर बताइएगा, यहाँ पर या इससे नीचे? जी सर, इससे नीचे। अच्छा देखें, मैंने आपको बताया कि प्रेशर का यूनिट क्या होता है। प्रेशर का यूनिट होता है पाउंड पर स्क्वायर इंच, यही होता है ना यानी LBF पर इंच स्क्वायर। यहाँ इसको अगर आप कैलकुलेट करें तो आपके यूनिट क्या आ रहे हैं? पाउंड फोर्स पर फुट स्क्वायर, दैट इज नॉट पाउंड पर स्क्वायर इंच। तो आपको इसको पाउंड पर स्क्वायर इंच लाना पड़ेगा। तो मैंने आपको एक वीडियो शेयर की थी यूनिट कन्वर्जन्स के ऊपर, तो आपने इस पाउंड फोर्स पर फुट स्क्वायर को इंच में लाना पड़ेगा। अब इंच में कैसे लाएंगे? ये 936 कैसे आया? 936 तो मुझे यूं मिल गया, 62.4 मल्टीप्लाई बाय 15, डायरेक्ट 936 आया। अब मुझे कन्वर्ट करने के लिए मैं पहले तो वो यूं लिखता हूं कि जो चीज ऊपर लिखी है उसको ऊपर लिख दिया। पाउंड फोर्स ऊपर था, फुट स्क्वायर नीचे था। मुझे कैंसिल फुट स्क्वायर को करना है, तो अगर फुट नीचे है तो यहां पर फुट ऊपर आना चाहिए। तो मैंने सबसे पहले फुट और इंच की रिलेशन लिख ली। मैंने लिखा 1 फुट इज इक्वल टू 12 इंचेस। मगर मुझे मालूम है ये फुट स्क्वायर है और ये फुट है, तो स्क्वायर स्क्वायर आपस में कटेगा। तो मुझे यहां पर इन दोनों को स्क्वायर करना पड़ेगा, यानी 1 फुट को भी स्क्वायर करना पड़ेगा और 12 इंचेस को भी स्क्वायर करना पड़ेगा। जब मैं 12 इंचेस को स्क्वायर करता हूं तो मेरा आंसर 144 स्क्वायर इंचेस बनता है, और फुट फुट वैसे ही कैंसिल हो जाता है। अब मैं अगर करूं 936 डिवाइडेड बाय 144, अब मैं आंसर सही लिख सकता हूं कि दिस इज इन PSIG। दिस इज इन PSIG। आपने मेरा असाइनमेंट किया था जो मैंने कुछ आपको यूनिट कन्वर्जन्स दिए थे? अगर जी किया सर। होता तो ये उधर ये सवाल नहीं आए थे? मैंने आई थिंक पूछे तो होंगे प्रेशर के रिलेशन। मुझसे किसी ने, स्टूडेंट ने पूछा नहीं कि हमने सही किए या गलत किए, तो मैं अज्यूम करता हूं कि सबको समझ आ गई हो, सबको समझ आ गया है वो काम। जी मैं सर। दोबारा बोल रहा हूं कि आपको आपके अमेरिकन यूनिट्स के अंदर कन्वर्जन करना लाजमी करना होगा। यही वजह है मैंने आपके साथ आधा घंटे से ज्यादा स्पेंड किया था एक पूरी वीडियो बनाने के लिए और आपको यूनिट कन्वर्जन मेथड समझाने के लिए। अभी भी वक्त है, क्लास के बाद जाकर वो यूनिट कन्वर्जन वाली वीडियो देख लीजिएगा। अगर नहीं समझ आए तो मुझसे पूछ लीजिएगा। जितना आसान मैं बना सकता था स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको बना दी है। अब समझ आई आपको ये बात किस तरह कन्वर्ट किया है? जी सर। चलें, अच्छा जी सर, ये वीडियो कहाँ पे मिलेगी? YouTube चैनल मैंने आपको अपना लिंक शेयर किया है, उसके ऊपर आपको मिल जाएंगी मेरी तमाम फ्लूइड मैकेनिक्स की वीडियो। मेरा ख्याल है मैंने अच्छा आपको ओके सर। ग्रुप पे भी शेयर किया होगा उसका लिंक। एक सेकेंड, आई मस्ट हैव शेयर्ड इट समवेयर ओवर हियर। अगर नहीं शेयर हुआ है तो आई विल शेयर इट अगेन आफ्टर क्लास ऑन द ग्रुप। व्हाट्सएप ग्रुप सर, ये सर? नहीं नहीं नहीं, इसी पे शेयर कर दूंगा मैं। अगर आप अच्छा ओके बिलफर्ज, सर। अगर आप सब्सक्राइब भी कर लेते हैं तो जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको मालूम पड़ जाएगा। बट मेजॉरिटी ऑफ द वीडियो आर फॉर केमिकल, बट फॉर योर सेक फ्लूइड मैकेनिक्स इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट। अच्छा, अब आ जाएं। अब ये एक क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चन कैसे करेंगे? ये आपकी अंडरस्टैंडिंग चेक करता है। ये आपको बोलता है अ टैंक ऑफ ऑयल हैज वन साइड ओपन टू द एटमॉस्फेयर। इसने बोल दिया ओपन टू द एटमॉस्फेयर है, एंड द अदर साइड इज सील्ड विद एयर अबव ऑयल। इसका मतलब ये हुआ कि यहां तक आपके पास ऑयल है, आपका फ्लूइड ऑयल है, इसके जो ऊपर है ये एयर है। द ऑयल हैज स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.90। ये याद रख लें कि जब भी आपको कोई ऑयल का क्वेश्चन दिया जाएगा तो उसके साथ उसकी कोई स्पेसिफिक ग्रेविटी दी जाएगी। तो ऑयल का क्वेश्चन बगैर स्पेसिफिक ग्रेविटी के नहीं हो सकता।
अब मेरा क्या क्वेश्चन है, कैलकुलेट द गेज प्रेशर एट पॉइंट्स ए टू एफ एंड द प्रेशर एट द राइट साइड ऑफ द टैंक। सबसे पहले तो आप ये डिटरमिन करें कि ये जो क्वेश्चन है ये एसआई यूनिट के अंदर होगा या यूएस सिस्टम में होगा। पहले तो मुझे ये बताएं, और बताएं आपको कैसे मालूम पड़ा। क्वेश्चन देखकर सबसे पहले तो आपको ये डिटरमिन करना पड़ता है कि मुझे ये एसआई में करना है या मुझे यूएस में करना है, अनलेस मैं क्वेश्चन में मेंशन कर दूं। जी कौन बता सकता है? एनी वॉलंटियर्स? सर एसआई में एसआई में होगा, मेंशन नहीं है एटमॉस्फेयर सर के इसमें। क्यों एसआई में होगा? क्योंकि वो जो डेप्थ एटमॉस्फेयर है वो प्रेशर मीटर्स के में गिवन। बिल्कुल, ये डेप्थ आपको बता रही हैं कि ये एसआई यूनिट में होगा। 1.5 मीटर है, 3 मीटर है, 3 मीटर है। तो सबसे पहली बात तो ये कि आपको मालूम है एसआई मीटर में है, एसआई यूनिट में है, तो आपका काम आसान हो गया कि इसके अंदर यूनिट कन्वर्जन ही नहीं होगी, अनलेस मैं आपको बोलूं फाइनल आंसर मुझे ऐसा उसके अंदर दो, अमेरिकन सिस्टम के अंदर, मगर वो फाइनल आंसर मांगूंगा, तो आपको मालूम है यूनिट कन्वर्जन नहीं होगी। अब आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले तो ए टू एफ ढूंढना है, और ए टू एफ ढूंढने के बाद आपने एयर प्रेशर ढूंढना है। एयर प्रेशर आपको डायरेक्टली तो मिल नहीं सकता, तो आपको क्या अप्रोच लेनी चाहिए, ये आपका सवाल है कि मुझे प्रेशर एट डिफरेंट पॉइंट्स ढूंढने हैं। तो अब इसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले मैं प्रेशर ऑफ ए ढूंढूंगा। प्रेशर ऑफ ए क्या है ये मुझे बताएं। 180 एम सर, या 101 किलो पास्कल। क्यों? सर मतलब एलिवेशन 1 पे, एलिवेशन पे मतलब स्टार्ट एटमॉस्फेयर प्रेशर है, सिंपल। अच्छा, और कोई आंसर? एनी अदर आंसर? एक ने मुझे कह दिया एटमॉस्फेरिक प्रेशर है 101325। कोई और आंसर? गेस करें। सर 180 एम होता है सर एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारे ऊपर। हाँ, तो आप बोल रहे हो वन एटमॉस्फेयर है यहाँ पर प्रेशर, यही बोल रहे हो ना? यस सर। अच्छा, इसके अलावा कोई आंसर? अगर मैं बोलूं इसका ए का आंसर 0 है, देखें इसका मतलब आप सुन नहीं रहे थे। जब मैंने आपको ये एग्जांपल दे रहा था उस वक्त मैं आपको बोल रहा था कि लोएस्ट प्रेशर वुड बी 0 विच विल बी ओवर हियर। मैं आपको प्रूफ कर कर दिखा देता हूं 0 कैसे है। फॉर्मूला क्या है एलिवेशन का? व्हाट इज द फॉर्मूला? मुझे प्रेशर एट ए ढूंढना है ना, सही है? Z1 माइनस Z2। Z डेल्टा पी इज इक्वल टू एलिवेशन Z1 माइनस Z2, यही ढूंढना है ना, Z1 माइनस Z2। पहली बात तो ये है कि यहां पर कोई एलिवेशन है ही नहीं, क्योंकि यही आपका रेफरेंस पॉइंट है, तो H तो आपका 0 हो गया। एलिवेशन ही नहीं है सरफेस के ऊपर, अगर आप A को रेफरेंस पॉइंट लोगे तो यहां पर एलिवेशन क्या होगी? जीरो बात, जीरो ही बचा। बात समझ आ रही है? यहां पर एलिवेशन 0 हो गई, रेफरेंस में कोई पॉइंट ही नहीं है। तो सिंपल ट्रिक ये है कि वो प्रेशर जो एटमॉस्फेयर से रिलेटिव होता है ना ऑन द सरफेस, फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर हम करते ही ये हैं कि जो प्रेशर डायरेक्टली सरफेस के ऊपर होता है ना वो वैसे ही 0 होता है। और दूसरी बात अगर आप ये भी कर लो कि अगर आप दूसरी तरफ से भी मैं आपको दिखा दूं, एक तरीका तो ये है आपको 0 मानने का, ये बिल्कुल सरफेस के ऊपर है,
दूसरा तरीका क्या है कि फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा पी इज इक्वल टू स्पेसिफिक वेट मल्टीप्लाई बाय हाइट, यही है ना। डेल्टा पी का मतलब है दो प्रेशर P2 माइनस P1, और अगर आप कह रहे हो कि ए एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही है, आपने यही कहा ना कि ए एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, फर्ज करो आपने कहा ए एटमॉस्फेरिक प्रेशर है 101 किलो पास्कल, यही कहा है ना, सबने यही कहा था, गलत नहीं कहा था। मगर अगर ए ये प्रेशर है तो दूसरा प्रेशर क्या होगा जो P2 माइनस P1 है, क्योंकि हमारा फॉर्मूला P इज इक्वल टू स्पेसिफिक वेट मल्टीप्लाई बाय H नहीं है, चेंज इन प्रेशर है। दूसरा प्रेशर क्या हुआ, दूसरा प्रेशर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो 101 किलो पास्कल माइनस 101 किलो पास्कल ऑटोमेटिकली क्या होगा। यस समझ सर, आई बात, लॉजिक समझ आई, मैंने दोनों तरीके से आपको बता दिया, लॉजिक समझ आई। यस सर, क्योंकि यस डेल्टा सर, पी है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अगर वो भी 101325 है, ये भी 101325 है, तो ऑटोमेटिकली जीरो हो गया। अगर मैं आपसे रीजन पूछूं तो ये ऑब्वियसली बात है, ये रीजन हो गया, आपने रीजन बता दिया। मगर अगर रीजन नहीं पूछूं तो ये याद रख लें कि जो भी प्रेशर आपका सरफेस के ऊपर हो ना, बिल्कुल सरफेस के ऊपर हो रहा हो, जो एटमॉस्फेयर से डायरेक्ट कांटेक्ट में है, वो आपका प्रेशर कितना होगा, जीरो होगा। क्लियर हो गई बात। यस सर, अच्छा, यस सर। अब बात करते हैं, अब एक स्टेप नीचे जाते हैं। अब हम ढूंढते हैं प्रेशर एट बी। अब जनाब बी का प्रेशर कैसे ढूंढेंगे ये बताएं। सर एलिवेशन सर ए फाइंड को करेंगे, रेफरेंस गामा रखते से हुए मल्टीप्लाई चलो करेंगे। एलिवेशन कर लेंगे ए को रेफरेंस लेकर। चलें, ये भी मैंने बात मान ली कि ए को रेफरेंस लेकर एलिवेशन कर लेंगे, या बी को रेफरेंस ले सकते हैं, दोनों में से किसी को ले सकते हैं। आई वुड गो फॉर, चले ए को आपने ले ली, और क्या करेंगे। फिर नीचे वाला एलिवेशन सर नाम माइनस में लेंगे, ऊपर वाला उसके प्लस, ऊपर तो उसके वैसे ही नहीं। उसके अलावा क्या लेंगे। फिर वो इक्वेशन में पुट कर देंगे गामा एच से। अच्छा गामा क्या लेंगे। गामा दिया है सर ना 0.90। अच्छा, यहां पर आप मिस्टेक कर रहे हो, गामा यही मैं सुनना चाह रहा था, ये गामा नहीं है। गामा क्या होता है, यस सर, गामा ये होता है वेट। स्पेसिफिक वेट, ये क्या है, यस स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी और स्पेसिफिक वेट में क्या फर्क है या क्या रिलेशन है। अगर आपको चैप्टर 1 याद हो, स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल टू द स्पेसिफिक वेट ऑफ द सब्सटेंस डिवाइडेड बाय द स्पेसिफिक वेट ऑफ द रेफरेंस मटेरियल, जो इस केस के अंदर वाटर होता है, यही होता है ना। specific gravity was the specific weight of the oil divided by the specific weight of the water। तो आपने पहले specific weight of the oil को निकालना पड़ेगा। specific weight of the oil क्या होगा, specific weight of the oil कैसे निकालोगे। आपको specific weight of the water मालूम है SI यूनिट्स के अंदर। 1। नहीं यार, वो आप स्पेसिफिक ग्रेविटी और स्पेसिफिक वेट को कंफ्यूज कर रहे हो। स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर मैंने आपको बताया था 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब ऐसा यूनिट के अंदर, 62.4 पाउंड फोर्स पर फुट क्यूब लेक्चर 1 के अंदर है, इसीलिए मैंने आपको कहा था लेक्चर 1 रिव्यू करो। आप जो 1 बोल रहे हो ना, दैट इज स्पेसिफिक ग्रेविटी। बात समझ आई। यस सर। तो सबसे जी पहले सर। तो आपने ऑयल का स्पेसिफिक वेट निकालना है। ऑयल का स्पेसिफिक वेट कैसे निकलेगा, ये मैंने आपको कर कर भी दिखा दिया है फॉर्मूले में। स्पेसिफिक ग्रेविटी इज स्पेसिफिक वेट ऑफ ऑयल डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर एट 4 डिग्री। और ये आपको मालूम है कि 4 डिग्री के ऊपर स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर 9.81 होता है। ये दो वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए, 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मीटर क्यूब इन SI, 62.4 पाउंड फोर्स पर फुट क्यूब इन US सिस्टम। पर ये किस लिए है, ये वाटर की हैं, वाटर एट 4 डिग्री। अगर मैं बोलूं वाटर एट 70 डिग्री तो अल्लाह के वास्ते ये वैल्यू नहीं लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी मैं ये करता हूं कि मैं वैल्यू टेम्परेचर दे देता हूं। अगर मैंने आपको टेम्परेचर दे दिया तो आप इस वैल्यू की जगह कौन सी वैल्यू लेंगे,
आपको एक चार्ट दिया जाएगा, वो याद है लेक्चर 1 में मैंने आपको टेम्परेचर का चार्ट दिखाया था कि हाउ इज इट अफेक्टिंग स्पेसिफिक वेट। स्पेसिफिक sir. वेट कम हो रहा होता है, जी तो सर। आप उस चार्ट से रीड करोगे 100 डिग्री टेम्परेचर की वैल्यू या 70 डिग्री टेम्परेचर की वैल्यू। तो ये गलती नहीं कीजिएगा कि हर वक्त 9.81 ले लें। प्लीज प्लीज प्लीज, जो मैं पढ़ाता हूं वीडियोस देखें, ये पॉइंट्स आप नोट करें। ये अच्छी बात नहीं है, ये छोटी छोटी चीजें आप लोग मिस कर रहे हैं जो मैं पढ़ा चुका हूं, और ये मेरा टाइम दोबारा ज्यादा ले रही है फिर ये। तो सबसे पहले मैंने स्पेसिफिक वेट ऑफ द ऑयल ढूंढ लिया जो है 8.829, जिसको मैंने राउंड ऑफ कर दिया 8.83 कर। सही है, 8.83 कर दिया। अब अगर मुझे प्रेशर एट बी देखना है, प्रेशर एट बी देखना है, प्रेशर एट बी या प्रेशर फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, इट इज नथिंग बट स्पेसिफिक वेट मल्टीप्लाइड बाय द हाइट। 8.83 मल्टीप्लाइड बाय 3 हो जाएगा। तो ये आंसर मुझे 26.4 गेज प्रेशर मिल जाएगा। अब यहां पर कोई मुझसे ये पूछ सकता है कि मैंने यहां पर इसको -3 क्यों लिया, नहीं लिया। -3 मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि मैंने अभी रेफरेंस पॉइंट बनाया नहीं है, मैंने सिर्फ एलिवेशन के ऊपर प्रेशर निकाला है। इस वक्त मैंने सिर्फ एलिवेशन के ऊपर प्रेशर निकाला है। तो ये मेरा ए को जब मैंने फॉर बी कीपिंग ए एज रेफरेंस, डेल्टा पी या डेल्टा ए बी दोनों वही चीज हैं, डेल्टा पी या डेल्टा ए बी। डेल्टा ए बी मीन्स प्रेशर एट ए माइनस प्रेशर एट बी। ये बात समझ आई कि ये आंसर कैसे आया? Yes. अच्छा, अब एक चीज नोट करें, जब मैंने आपको एलिवेशन एग्जाम्पल की बात की थी, एलिवेशन एग्जाम्पल के अंदर अब मैं वो पॉइंट्स रिलेट करूंगा। वन ऑफ द पॉइंट्स मैंने ये कहा था कि जिस तरह आप डेप्थ कम करोगे तो आपका प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा। आपने डेप्थ कम की, यहां पर आपकी डेप्थ अज्यूम कर लें कोई भी डेप्थ है 0 है, 0 से जब आप नीचे आए आपने 3 मीटर की, तो आपका प्रेशर क्या हुआ? सर Increase. 3 टाइम्स हो जाएगा। इंक्रीज इंक्रीज 3 टाइम्स नहीं होगा, इंक्रीज इंक्रीज हो हुआ। इंक्रीज हाँ, होगा। कोई भी प्रेशर आया, अभी अभी 3 टाइम्स की बात ही नहीं हुई है। अच्छा, ये एक पॉइंट हो गया। अब मुझे ढूंढना है प्रेशर एट सी। भाई प्रेशर एट सी कैसे ढूंढूंगा? अच्छा, प्रेशर एट सी वुड बी सेम अगर ये प्रेशर मैं इस पॉइंट के ऊपर लूं, क्योंकि प्रेशर इन स्ट्रेट लाइन इज द सेम। तो मैं ये प्रेशर ढूंढ रहा हूं इस पॉइंट के ऊपर। अब बताएं मुझे जनाब, प्रेशर एट सी क्या होगा? सी के लिए मैं हाइट क्या लूंगा? 6 sir. 6 ले लूंगा, चलो मान लिया। स्पेसिफिक वेट मैंने अभी ढूंढा था, स्पेसिफिक वेट मैंने अभी अभी ढूंढा था, तो मैं क्या करूंगा, 8.83 मल्टीप्लाई बाय 6, 53 किलो पास्कल गेज। यहां पर 2 पॉइंट प्रूव हो रहे हैं। पहला वही पॉइंट प्रूव हो रहा है कि जिस तरह डेप्थ नीचे जा रही है तो उस तरह प्रेशर बढ़ रहा है। यहां पर डेप्थ बिल्कुल नहीं थी, 0 है प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यहां पर डेप्थ कम हुई, प्रेशर बढ़ गया। यहां पर डेप्थ और कम हुई, प्रेशर और बढ़ गया। एक पॉइंट तो ये प्रूव हो गया। दूसरा पॉइंट ये प्रूव हो गया कि प्रेशर इज लिनियर विद डेप्थ। यहां पर देखें 3 मीटर के ऊपर 26 इंक्रीज हुआ था। जब आपकी डेप्थ डबल हो गई, 3 से 6 हो गया, तो प्रेशर भी आपका क्या हुआ कि प्रेशर भी डबल हो गया। ए टू बी प्रेशर 26 था, बी टू सी वो प्रेशर 52 हो गया। तो वो लिंक समझ आया जो मैं पॉइंट बता रहा था? Yes sir. अच्छा, अब आप बात कर लें प्रेशर एट डी कैसे ढूंढेंगे। ये मुझे कौन बताएगा प्रेशर एट डी? सर लीनियर जब हम हॉरिजॉन्टल में जा रहे थे तो सेम ही रहता था, मतलब 0 चेंज रहता था, वही होगा जो बी पर है। हाँ, आपको डी के लिए तो कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है, आप सिर्फ ये बोल दोगे प्रेशर एट डी इज
at is horizontal to B at the same level. Important word is pressure at D is at the same level at pressure at B, यानी जो B का प्रेशर होगा वो D का प्रेशर होगा. प्रेशर एट E क्या होगा? वो ए वाला होगा सर. प्रेशर और ए वाला सर. सर जो ए वाला सही प्रेशर है. होगा वही ए वाला यही बात मैंने यहां पर लिखी. As D is at the same reference level at B, pressure of B is equal to pressure of D. इसी तरह E के लिए भी ये किया. As E is at the same level as A, pressure is same. Pressure of A is equal to pressure of B. Pressure of E is equal to 0 Pascal. अच्छा, F कैसे ढूंढेंगे? अब बताएं. F के लिए क्या करेंगे? सर मेरे ख्याल से ये जो आपने बताया था कि ए पे 0 है तो ऊपर तो सर नेगेटिव में तो सर प्रेशर 0. बताएं, गेस करें, क्या करेंगे? ए की भी कोई हाइट, एफ की भी तो कोई हाइट है ना? यस सर, तो ई और एफ का कर देंगे सर. क्या कर देंगे? एफ का क्या? एफ का प्रेशर कैसे निकालेंगे? सर एलिवेशन तो पता है, दिया है पिक्चर में, तो नहीं दिख रहा मेरे ख्याल से 1.5 है. क्या है ये? तो दिया है सर. तो ये दिया तो है ना, एलिवेशन दिया हुआ है ना. ए और एफ के बीच में 1.5 एलिवेशन दिया हुआ है ना. तो आंसर क्या यस होगा? सर, यही ये तो पूछ रहा एलिवेशन हूं. जो है वो स्पेसिफिक वेट से मल्टीप्लाई कर लेंगे सर. आंसर, हाँ, तो फिर क्या होगा? और साथ में माइनस लगाएंगे. इस नीचे वाले को माइनस लगाएंगे सर, ऊपर वाले को प्लस लगाएंगे, क्योंकि सर वो साइन कन्वेंशन है. बिल्कुल माइनस लगेगा. मैं यही सुनना चाह रहा था. माइनस लगेगा इसके अंदर, क्योंकि प्रेशर कैन बी नेगेटिव. यहां पर आपका माइनस, ये देखें, अगर मैं बात कर रहा हूं F इज 1.5 मीटर अबव ए, तो अगर आप F को रेफरेंस लेवल ले रहे हो, तो A का लेवल, A की हाइट -1.5 होगी. तो इसीलिए यहां पर डेफिनेटली नेगेटिव लगेगा. प्रेशर एट AF इज इक्वल टू माइनस गामा मल्टीप्लाई बाय H, यानी -8.83 इंटू 1.5 इज इक्वल टू -13.25. इससे एक चीज और प्रूव होती है. पहली बात तो ये कि अगर एक स्मार्ट स्टूडेंट होता या एक नॉर्मल स्टूडेंट होता, अगर उसने मेरी बात सुनी है, तो उसको तो पहले ये भी मालूम होता कि ये आंसर नेगेटिव में लाजमी आएगा. उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि ए के ऊपर अगर आपका प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर 0 था, ए के ऊपर अगर प्रेशर 0 था, तो डेफिनेटली इससे अगर आप लेवल इंक्रीज करोगे, लेवल इंक्रीज के लिए मैंने क्या कहा है? मैंने आपको ये कहा था अगर आपकी हाइट डिक्रीज हो तो प्रेशर इंक्रीज होगा, अगर आपकी हाइट इंक्रीज हो तो प्रेशर कम होगा. यही बोला था ना. यहां पर आपकी हाइट क्या हो रही है? यहां पर आपकी हाइट इंक्रीज हो रही है. और अब डेफिनेटली सी बात है कि अगर ए के ऊपर प्रेशर 0 है, अगर 0 के बाद अगर आप हाइट इंक्रीज करोगे और कोई वैल्यू प्रेशर की आएगी जो डिक्रीज होगी, तो उसकी वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव में आएगी. बात समझ आई? यस सर. सही है. तो ये चीजें दिमाग में रखें कि प्रेशर, जिस तरह आप हाइट बढ़ाओगे तो प्रेशर आपका कम होगा. अगर आप हाइट कम करोगे, नहीं, हाइट अगर आप बढ़ाओगे, नीचे की तरफ बढ़ाओगे, नीचे की साइड पर, हाइट दोनों साइड पे बढ़ सकती है. अगर हाइट नीचे की साइड पे बढ़ेगी तो आपका प्रेशर बढ़ेगा. अगर हाइट आपकी ऊपर की साइड पे बढ़ेगी विथ योर रेफरेंस, तो आपका प्रेशर कम होगा. ये एक बात थी. दूसरी बात ये कि प्रेशर एट द एटमॉस्फेयर विल ऑलवेज बी 0. वो मैंने आपको प्रूफ कर दिया. व्हाई विल इट बी 0? डेल्टा पी कर. तो ये चीजें आपको, यू शुड नो these tips and tricks. This will help you to get your answers correct. Lastly, मैंने आपसे पूछा था फाइनल प्रेशर क्या है, यानी प्रेशर एट F क्या है. तो जो प्रेशर एट F है, इधर जो प्रेशर है वो दोनों का प्रेशर होगा, यानी AF का प्रेशर होगा और A का प्रेशर होगा. यानी ये जो आपने प्रेशर कैलकुलेट किया है इस पॉइंट के ऊपर, आपने जो प्रेशर A टू F के बीच में कैलकुलेट किया है, एक तो वो प्रेशर होगा
दूसरा ये ए का प्रेशर होगा। जब दोनों को ऐड करोगे तो कोइंसिडेंटली आपका आंसर वही आएगा, क्योंकि ए का प्रेशर है ही 0 एटमॉस्फेयर 0 किलो पास्कल। क्लियर है? यस सर। यस सर। ये पहला सवाल था, तो हो सकता है कि आपको थोड़ा सा मसला होगा, इसको एक दफा जाकर प्रैक्टिस कीजिएगा। ये वर्कड एग्जांपल है, ये वर्कड एग्जांपल है, मगर मैंने इसको खुद सॉल्व किया क्योंकि मैंने कहा बुक के अंदर हो सकता है प्लस माइनस हो, मैं आपको विद एग्जांपल कर कर बताऊं, मगर जो आपके होमवर्क सवाल हैं वो इन्हीं कॉन्सेप्ट के ऊपर हैं। तो जिस तरह आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको खुद भी बेहतर होगा। नहीं समझ आए मुझसे पूछ लीजिएगा, कोई मसला नहीं है। चलें, अब ये जब कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं? इससे वही कंक्लूड कर सकते हैं व्हाट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, प्रेशर इंक्रीजेस एज डेप्थ इन फ्लूइड इंक्रीजेस, एज कैन बी सीन फ्रॉम पॉइंट्स ए बी एंड सी। जिस जिस तरह डेप्थ नीचे इंक्रीज हो रही है, प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। प्रेशर वैरीज लिनियरली विद चेंज इन एलिवेशन। प्रेशर एट सी इज 2 times द प्रेशर एट बी बिकॉज सी इज ट्वाइस द डेप्थ ऑफ बी, ये भी मैंने बता दिया है। At the same level horizontally, pressure is the same as, because reference level वही है, pressure at A is the same as pressure at E. Pressure at B is equal to pressure at A. Pressure decreases from E to F. E to F क्यों decrease होगा? क्योंकि F is at a higher elevation level than E. जब वो higher elevation level के ऊपर है तो वहां पर pressure आपका decrease कर ही जाएगा। ऊपर जाओगे तो प्रेशर कम होगा, जब मैक्सिमम प्रेशर आपका 0 है वहां पर तो 0 से कम होगा प्रेशर। प्रेशर एट एफ इज नेगेटिव एज इट इज बिलो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अच्छा, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि गिव रीजंस फॉर योर आंसर, कभी कभी मैं बोलता हूं कि प्रेशर निकालने के बाद रीजंस बताओ, तो आपके रीजंस यही होंगे। रीजन नंबर 1 आप ये बोलोगे प्रेशर ऑफ ए इज 0 बिकॉज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसका रीजन देना आसान है कि हाइट के साथ ये इतना दे रहा है, और इसको आप बोलोगे अबव द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अबव एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्यों बोलोगे? क्योंकि इसकी डेप्थ नीचे जा रही है। इसके लिए आप बोलोगे कि डबल हो रहा है अबव द एटमॉस्फेरिक प्रेशर बिकॉज इट इज लिनियरली गोइंग लाइक दैट। इसके लिए आप सेम बोलोगे कि सेम रेफरेंस लेवल, दिस इज ऑल्सो सेम रेफरेंस लेवल। इसके लिए आप बोलोगे नेगेटिव एटमॉस्फेरिक प्रेशर, sorry, not negative atmospheric pressure, negative pressure because the pressure is below the atmosphere. How do we know below the atmosphere? Because the height is increasing from atmospheric pressure, and if the height increases automatically the pressure decreases. तो ये इसके रीजंस हैं। अच्छा, अब ये जो हमने सारी इक्वेशन बनाई है ना, ये कोई तरीके से डेवलप हुई थी, उसका डेरिवेशन था। अब डेवलप किस तरह हुई है इसको देख लें। हम सिर्फ इक्वेशन जानते हैं कि इक्वेशन क्या है। इक्वेशन इज डेल्टा पी इज गामा मल्टीप्लाई बाय एच, मगर ये डेल्टा पी इज इक्वल टू गामा मल्टीप्लाई बाय एच क्या कहां से? We know that the equation which relates the change in pressure to the elevation, ये हम जानते हैं, और ये डेल्टा P is equal to gamma H, इसको हम equation of elevation बोलते हैं। The question arises, how is this equation achieved? इसके लिए हमें थोड़े assumption करते पड़ते हैं, या experts ने assumptions किए थे। क्या assumption किए थे? Assume a static fluid। मैंने आपको बताया था कि ये इक्वेशन सिर्फ स्टैटिक फ्लूइड के लिए है, वो एक फ्लूइड जो मूव नहीं कर रहा। अज्यूम अ स्टैटिक फ्लूइड विद अ स्पेसिफिक वेट गामा। उस फ्लूइड का कोई ना कोई गामा वेट लाजमी होगा। कोई भी अगर आप स्टेशनरी फ्लूइड ले लो, पानी ले लो, ऑयल ले लो, मरकरी ले लो, उसका कोई ना कोई स्पेसिफिक वेट गामा होगा। और अगर आप उसको एक स्मॉल सिलिंड्रिकल वॉल्यूम ऑफ वाटर में डालोगे समवेयर बिलो द सरफेस, तो कोई ना कोई प्रेशर भी होगा। एज द इंटायर बॉडी ऑफ द फ्लूइड इज स्टेशनरी, ये याद रख लें कि अगर आपकी पूरी बॉडी ऑफ फ्लूइड स्टेशनरी है तो उस वक्त एक इक्विलिब्रियम होता है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इक्विलिब्रियम? बेसिकली इक्विलिब्रियम इज व्हेन ऑल फोर्सेस बैलेंस आउट ईच अदर। अगर आपकी तमाम फोर्सेस बैलेंस्ड आउट हैं और कोई एक्सटर्नल फोर्स कहीं से नहीं लग रही, तो आपका जो सिस्टम है दैट इज
That is what? That is in equilibrium. Okay. और दूसरी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया इक्विलिब्रियम का कि सम ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग आर जीरो. द हॉरिजॉन्टल फोर्सेस आर अज्यूम टू बी बैलेंस्ड. हम अज्यूम कर लेते हैं कि हमारी हॉरिजॉन्टल फोर्सेस बैलेंस्ड हैं. किस तरह बैलेंस्ड हैं? दे आर बैलेंस्ड बिकॉज we assume that pressure at any horizontal level in the static fluid is same. ये एक assumption है कि horizontal level के अंदर तमाम pressure same होता है, तो इसकी forces balanced होती हैं. तो हमारा जो force focus है ना, वो horizontal उस पे नहीं है, forces पे, वो perpendicular forces पे है, यानी vertical forces पे है. As the sides of the cylinder, the forces are assumed to be balanced because the force acting on the boundary acts as a perpendicular direction. Vertical forces are shown and their balances is also required to achieve equilibrium. हम सिर्फ जब बोल सकते हैं कि equilibrium achieve हो जाए जब आपकी horizontal forces भी balance हो जाए, zero हो जाए, और आपकी vertical भी balance हो जाए, zero हो जाए. Horizontal का तो हमें मालूम है balanced है. ये इसका एक small diagram है. ये आपका कोई फ्लूइड है, ये आपका सिलेंडर है. अब इस सिलेंडर के अंदर ये तमाम फोर्सेस आपकी एक्ट हो रही हैं. अब जो हॉरिजॉन्टल के अंदर है ना, ये आपस में बैलेंस हो जाएंगी सेम लेवल की वजह से. तो ये सारी बैलेंस हो जाएंगी. किसी का कोई साइन कर परपेंडिकुलर लेकर दीज विल बैलेंस आउट एंड आवर इंटरेस्ट इज नॉट इन द बैलेंसिंग ऑफ द हॉरिजॉन्टल फोर्सेस. Our interest is balancing the vertical forces. तो हम vertical forces की बात करते हैं. Vertical forces को जरा assume कर लें. अगर आपके पास ये एक सिलेंडर है, ये एक सिलेंडर है, तो हम इसको assume कर रहे हैं. ये assumptions देखें. ये सिलेंडर में डेफिनेटली कोई एक फोर्स होगी जो W होती है. इस सिलेंडर का एक वेट होगा, तो एक फोर्स वर्टिकल तो नीचे जा रही है. That is one of the forces. उसके बाद क्या है? उसके बाद और ये फोर्स इसके स्पेसिफिक वेट की वजह से है. इसके अलावा इस सिलेंडर के पास एरिया है, दो सरफेसेस हैं. एक ये ऊपर सरफेस है जिसके ऊपर एक प्रेशर एक्ट हो रहा है, ऊपर से प्रेशर एक्ट हो रहा है, और एक इसका नीचे वाला सरफेस है जिसके ऊपर प्रेशर एक्ट हो रहा है. The pressure on the top surface is acting from the top direction, यानी up to down हो रहा है. और जो pressure on the bottom surface है, that is acting from the bottom direction, जिसको नीचे से भी तो water ऊपर force करेगा ना उसको balance करने के लिए, वो उसकी force लगेगी. अब pressure और area का क्या importance आ गया है? हम ये pressure और area को बीच में क्यों लाए हैं? अगर आपको प्रेशर का जनरल इक्वेशन मालूम है तो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया. एंड बिकॉज वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन द प्रेशर, वी आर इंटरेस्टेड इन द फोर्स. जब हम इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं तो हम फोर्सेस को बैलेंस कर रहे हैं, हम प्रेशर को बैलेंस नहीं कर रहे. तो इसीलिए हमें इधर जो फोर्स है उसको सेपरेट करना है, इधर फोर्स है वो सेपरेट करना है. और यहाँ की फोर्स जो हो रही है वो एक प्रेशर 2 के ऊपर अप्लाई हो रही है, क्योंकि यहाँ का जो प्रेशर है वो यहाँ के प्रेशर से डिफरेंट है. इसीलिए यहाँ पर P2 लिखा गया है, यहाँ पर P1 लिखा गया है. और क्योंकि P2 है तो जो फोर्स है वो F2 है, क्योंकि P1 है जो फोर्स वो है वो F1 है. A ऑफ कोर्स इज कांस्टेंट, क्योंकि सिलेंडर का जो ये सर्कुलर हिस्सा है that is definitely going to be constant, area cannot change. इसीलिए F2 is P2A, it is not P2A2, it is not P1A1. Area is not changing. The only parameter which is changing is pressure. Pressure at the top is not equal to pressure at the bottom. That is why P1 is one place, P2 is the second place, and because of that we have F1 and F2. ये तो मैंने आपको फोर्स का बता दिया, वेट का बता दिया. दूसरी बात आपको मैं ये बता दूं कि वैसे आपको मालूम है चेंज इन प्रेशर क्या होता है, यानी डीपी क्या होता है. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अ चेंज इन एनीथिंग? अ चेंज इन एनीथिंग इज द
final value minus initial value. In other words, delta P is equal to P2 minus P1. तो यहां पर इन्होंने लिखा हुआ है P1 plus dP is equal to P2. इस पे कंफ्यूज नहीं हो. अगर आप डेल्टा P को सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या बन जाएगा? वही चीज बन जाएगी जो आपको मालूम है, P2 minus P1. यानी डेल्टा P would be pressure on this surface minus pressure on this surface. हाइट के बीच के अंदर दो डिस्टेंसेस होते हैं, तो वो डिस्टेंसेस आपके Z2 और Z1 होंगे बेस्ड ऑन योर रेफरेंस पॉइंट. Z1 नीचे इसलिए है क्योंकि आपका नीचे 1 से रिलेटेड है, प्रेशर 1 फोर्स 1. Z2 यहां पर है क्योंकि प्रेशर 2 फोर्स 2. अभी जो मैंने सारी इतनी बातें की हैं इस डायग्राम के ऊपर, ये बातें क्लियर हैं, तो फिर हम आगे डिराइव करेंगे. ये सारे पैरामीटर्स मालूम पड़े कि किस तरह आए? जी यस सर. तो अगर मैंने आपको ये डायग्राम दे दिया या आई आस्क यू टू डिराइव द एलिवेशन इक्वेशन, तो पहले तो आपको ये डायग्राम बनाना पड़ेगा और ये पैरामीटर्स दिखाने पड़ेंगे, फिर आपको उनको एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी, जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेनेशन रफली बताई थी कि किस तरह रिलेटेड है, मगर आपको मैंने इसको फर्दर डिराइव कर कर दिखा दिया है. इसको देखें, चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं. द फ्लूइड प्रेशर एट द लेवल बॉटम ऑफ द सिलेंडर इज P1 और जो टॉप के ऊपर है वो क्या है? P2. तो एलिवेशन डिफरेंस फ्रॉम द सिलेंडर क्या होगा? डेल्टा Z वुड बी Z2 माइनस Z1, क्योंकि कोई भी जो चीज होती है वो हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल होती है. इन अदर वर्ड्स 2 माइनस 1 होती है. प्रेशर चेंज फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम क्या होगा? DP. डेल्टा P इज द सेम थिंग व्हाट आई ऑलरेडी टोल्ड यू, P2 minus P1. Area in the top and the bottom is called A and area is constant. I told you why it's constant. Volume of the cylinder क्या होगी? AdZ. AdZ मैंने वॉल्यूम क्यों निकाली, कैसे निकाली? वॉल्यूम यूं ही निकलेगी, एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट. टोटल हाइट क्या है इस सिलेंडर की? टोटल हाइट इसकी dZ है. टोटल हाइट dZ है क्योंकि वो Z1 और Z2 से बनी है. तो एरिया क्या हो, वॉल्यूम क्या हो गई? AdZ. वेट ऑफ सिलेंडर आपको मालूम है कि स्पेसिफिक वेट इज इक्वल टू W अपॉन V. अब इसको डिराइव करने के लिए जाएं. अब आपको समझ आएगी कि डेरिवेशन कहां से आया है. नहीं समझ आए तो मुझे रोक लीजिएगा. आपको मालूम है कि स्पेसिफिक वेट का फॉर्मूला है W अपॉन V. W को फिलहाल छोड़ दें, V की तरफ जाते हैं. अभी हमने बात की V क्या है? एरिया मल्टीप्लाई बाय चेंज इन हाइट. तो मैंने सिंपली एरिया मल्टीप्लाई बाय चेंज इन हाइट कर लिया, AdZ. चलें, अब मुझे यह भी मालूम है कि प्रेशर एट द बॉटम ऑफ द सिलेंडर क्या है. मुझे मालूम है प्रेशर का इक्वेशन होता है P1 इज इक्वल टू F1A, F1 अपॉन A. ये जो प्रेशर है ये अपवर्ड एक्ट करता है. इसी तरह प्रेशर एट द टॉप क्या है? Pressure at the top is P2 is equal to F2A which acts downwards. आपको मैंने शुरू में बताया था कि ये मेरे पास अब 3 फोर्सेस हो गई हैं. कौन सी 3 फोर्सेस हो गई हैं? एक ये F1 फोर्स हो गई, एक F2 फोर्स हो गई, एक आपका वेट हो गया. वेट फोर्स होता है. आपको मैंने ये भी बताया था कि इक्विलिब्रियम जब हम अज्यूम करते हैं तो इक्विलिब्रियम की सबसे बड़ी बात यह है कि इक्विलिब्रियम में all forces have to be balanced together and their sum is equal to 0. तो आप क्या करेंगे? आप तमाम फोर्सेस को बैलेंस्ड कर देंगे. अगर आप इनको इक्वेट करें तो आप खुद देख सकते हैं कि यहां पर 3 फोर्स हैं, 2 नीचे की डायरेक्शन में जा रही हैं, एक ऊपर की डायरेक्शन में जा रही है. इसका मतलब यह हुआ कि F2 की जो फोर्स है दैट इज गोइंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. W की जो फोर्स है यानी वेट दैट इज गोइंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. F1 की जो फोर्स है वो अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है. तो सबसे पहले तो आप दोनों लाइक टर्म्स को एक जगह कर लें, डिफरेंट टर्म को दूसरी जगह कर लें. तो मैंने इक्वेशन में यही किया कि मैंने F2 प्लस W कर लिया क्योंकि वो दोनों नीचे जा रही हैं. दैट इज इक्वल टू F1 जो ऊपर जा रही है. उसके बाद मैंने इसको सिंप्लीफाई किया. F2 इज इक्वल टू AP2
ये मुझे कहां से मिला? ये मुझे प्रेशर के इक्वेशन से मिला कि प्रेशर इज इक्वल टू F2 अपॉन A। इसी तरह मैंने W की जगह सिग्मा AD लिखा, सिग्मा AD लिखा, सिग्मा नहीं, ये सॉरी क्या बोलते हैं इसको, गामा, गामा ADZ लिखा। ये मुझे कहां से आया? गामा ADZ, मैंने W को सब्जेक्ट बना दिया। यहां तक क्लियर है? यस सर। मैंने सिर्फ W को सब्जेक्ट बना दिया। तो और दूसरी जगह मैंने AP1 किया। अब मैं क्या करूं कि मैं इस AP1 को इस साइड पे ले गया, क्योंकि द सम ऑफ माय फोर्सेस इज इक्वल टू 0। जब ये फोर्सेस यहां पर आ गई तो आप इधर देखें, मैंने सबसे पहले तो AP2 माइनस AP1 को डील कर रहा हूं, इसको मैंने फिलहाल छोड़ दिया। AP2 और AP1 को अगर मैं डील करूं, मैं A को कॉमन लिया, मैं यहां पर P2 माइनस P1 लिख सकता था, मगर मैंने एक स्टेप स्किप कर लिया। आई ऑलरेडी नो दैट P2 माइनस P1 इज डेल्टा P, चेंज इन प्रेशर। तो मैंने A dP लिख दिया प्लस A गामा dZ इज इक्वल टू 0। अब मैंने A को दोबारा कॉमन ले लिया। A को जब मैंने दोबारा कॉमन ले लिया तो मेरे पास बच गया dP प्लस गामा dZ इज इक्वल टू 0। A की वैल्यू हट जाएगी, क्योंकि अब A की वैल्यू ही नहीं है इस इक्वेशन के अंदर। 0 डिवाइड बाय A हट जाएगा। मैं सिर्फ dP को सब्जेक्ट बना दूंगा। dP इज इक्वल टू, जब मैं गामा को यहां ले जाऊंगा तो ये बन जाएगा माइनस गामा dZ। यहां तक कोई मसला? एनी प्रॉब्लम? नो सर, क्लियर। तो सर क्लियर। this is the general equation, this is the general equation। अभी तक मैंने लिक्विड की बात की नहीं है। this is the general equation of elevation। अब हम incompressible fluid की बात करते हैं। for incompressible fluid, in other words it is a liquid। for incompressible fluid को अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं सिर्फ इसको एक्सपैंड कर रहा हूं। तो dP को मैंने वैसे के वैसे रखा, dP इज इक्वल टू माइनस गामा को वैसे के वैसे रखा, और dZ को मैंने रखा Z2 माइनस Z1। dP को मैंने खोल दिया P2 माइनस P1 इज इक्वल टू माइनस गामा Z2 माइनस Z1। अब बात यहां आती है कि ये H कहां से आया। कन्वीनियंस पर्पसेस के लिए हमें ये पहले से ही मालूम है कि dP इज इक्वल टू P2 माइनस P1, और जो एलिवेशन होती है ना, देखें देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन H एंड डेल्टा Z। डेल्टा Z क्या होती है? फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल। और H क्या होता है? H इज द डिफरेंस, H इसका उल्टा होता है, इनिशियल माइनस फाइनल। क्योंकि कोई चीज की आप एलिवेशन लोगे तो आप पहला पॉइंट लोगे, उससे आप दूसरे को सब्ट्रैक्ट करोगे। तो H और DZ को कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। DZ इज Z2 माइनस Z1, H इज Z1 माइनस Z2। तो मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ ये किया कि P2 माइनस P1 इज इक्वल टू माइनस गामा Z2 माइनस Z1, यहां पर DZ था। तो अगर मुझे यहां पर H लिखना है तो H लिखने के लिए मुझे यहां पर साइन रिवर्स करनी पड़ेगी। साइन रिवर्स कैसे करनी पड़ेगी? Z2 माइनस Z1, इसको अगर मुझे H बनाना है और Z1 माइनस Z2 करना है तो मैं अंदर क्या लिखूंगा? माइनस H लिखूंगा ना, साइन रिवर्स करने के लिए। अगर H मेरा Z1 माइनस Z2 है और ये Z2 माइनस Z1 है, तो H लाने के लिए मैं माइनस H लिखूंगा। ये जो माइनस है, ये माइनस और ये गामा के बाहर वाला माइनस, ये फिर आपस में कट जाएगा। एंड माई इक्वेशन वुड बी P2 माइनस P1 इज इक्वल टू गामा H, विच मीन्स दैट डेल्टा PH इज इक्वल टू गामा H। प्रूव हो गया। समझ आई? यस सर ये सर। लिक्विड की इक्वेशन होगी ना? बिल्कुल लिक्विड की इक्वेशन होगी, क्योंकि ये इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है। और शुरू में भी मैंने आपको यही कहा था कि दिस डेल्टा P इज इक्वल टू गामा H इज फॉर अ लिक्विड। जो मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात कर रहा था, उसी वक्त मैंने आपको कह दिया था कि इट इज फॉर अ लिक्विड। यस सर, ठीक। बात सुने,
और इसीलिए मैंने आपको गैसेस की इक्वेशन के लिए दिया ही नहीं है, क्योंकि दिस इक्वेशन इज नॉट पॉसिबल फॉर गैसेस। कोई भी कंप्रेसिबल फ्लूइड होता है ना, तो उसके लिए हमें थर्मोडायनेमिक्स इक्वेशन यूज करने पड़ते हैं। सो यू कैन नॉट यूज दिस ऑन गैसेस, यू स्टे ऑन लिक्विड। अब आप आते हैं बात पास्कल के पैराडॉक्स की। पास्कल का पैराडॉक्स क्या होता है? इन द डेवलपमेंट ऑफ अ रिलेशनशिप ऑफ चेंज इन प्रेशर, पास्कल ने डिटरमिन किया कि व्हेन यू रिलेटिंग मेकिंग अ रिलेशनशिप ऑफ चेंज इन प्रेशर अगेंस्ट एलिवेशन, जब आप प्रेशर अगेंस्ट एलिवेशन की बात करते हो ना, तो शेप एंड साइज ऑफ द स्मॉल वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डज नॉट अफेक्ट द रिजल्ट। यानी अगर आपके पास कोई स्मॉल साइज ऑफ फ्लूइड है ना, इट विल नॉट अफेक्ट द रिजल्ट ऑन योर प्रेशर। इसका मतलब ये हुआ द चेंज इन प्रेशर ओनली डिपेंड्स अपॉन द चेंज इन एलिवेशन। जो आपका प्रेशर है ना, वो सिर्फ और सिर्फ हाइट के ऊपर डिपेंड करेगा, शेप के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। और इस बात को हम पास्कल्स पैराडॉक्स बोलते हैं कि ये जो ऑब्जर्वेशन जो पास्कल ने की थी ना, ये पास्कल पैराडॉक्स होता है एंड इट इज यूजफुल व्हेन हाई प्रेशर मस्ट प्रोड्यूस इन अ सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड पाइप्स एंड टैंक्स। आगे जब हम बर्नौलीज इक्वेशंस करेंगे पाइप, टैंक्स और नोजल्स के लिए, तब ये पास्कल्स पैराडॉक्स आपके पास आएगा। मगर कहने की बात यह है कि पास्कल पैराडॉक्स बोलता है ये मेरे पास 5 फिगर हैं, 1 2 3 4 5, इनकी आप वॉल्यूम देखें, इसकी वॉल्यूम डिफरेंट है, इसकी वॉल्यूम डिफरेंट है, इसकी वॉल्यूम डिफरेंट है, इसकी वॉल्यूम डिफरेंट है, इसकी वॉल्यूम डिफरेंट है। ये आपको लग रहा है कि भाई ये इतना बड़ा है तो इसका प्रेशर ज्यादा होगा, या ये इतना छोटा है इसका प्रेशर कम होगा। इन सब का प्रेशर सेम है। अगर इसका प्रेशर 100 पास्कल है, इसका भी 100 पास्कल होगा, इसका भी 100 पास्कल होगा, इसका भी 100 पास्कल होगा, इसका भी 100 पास्कल होगा। क्यों होगा? इनका रेफरेंस लेवल सेम है, इनकी हाइट सेम है। तो यही बात हो रही है कि जब तक आपकी हाइट सेम है, आपके पास कोई भी कंटेनर हो जाए उस हाइट के ऊपर, आपके पास एक बाल्टी हो, आपके पास एक नोजल हो, आपके पास एक पाइप हो, आपके पास एक टैंक हो, आपके पास जो बॉडी हो, इट डज नॉट मैटर। द ओनली क्राइटेरिया फॉर प्रेशर मेजरमेंट इज द हाइट। अगर इन सारी बॉडीज की हाइट सेम है, तो आपका जो प्रेशर होगा that is going to be same. I can start manometers right now, but there are 5 minutes left, so I think we will do manometers tomorrow, because manometers are equally important